तो दोस्तों वेलकम बैक टू भोपाल पिजन्स। जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर ज़्यादा लंबा हो गया था, इसलिए सेकंड पार्ट लेके आए हैं आपको शफीक भाई के बर्ड्स का। और शफीक भाई के बर्ड्स आपको दिखाए जाएंगे जो कि परफॉर्मर्स हैं, परफॉर्मिंग दिखाई जाएगी उनकी, किस तरीके से मेंटेन करी जाती है पेडिग्री, वो भी आपको बताया जाएगा। नस्ल क्या होती है, किस तरीके से नस्ल शो करते हैं, वो बताई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए चलते हैं हम शफीक भाई की तरफ। वालेकुम सलाम भाई। तो शफीक भाई, हमारे व्यूवर्स को आप कौन कौन से बर्ड्स दिखाना चाहेंगे? See bhai, this is our one of the best lineage in our loft. Yeah, This actually Chinese mix. it is Chinese and an imported bird mix. Chinese along with Imported bugs. Okay, This bird actually flown in my loft okay. and she got a first placement and young bird. In Young bird category. Young bird category. Young bird, but she is also that time young bird only. Now she flown and win the young bird category. Okay. In young bird, What is the name of this? this Chinese girl. Chinese girl. Chinese. मतलब you had given this name of Chinese girl. Yeah, Chinese girl. So She look like a male, but she is a female. she's a Actually. female. In 200 kilometers, she has a velocity of 1482. 1482. 1482 velocity. Okay. What does velocity means? Distance calculated by time. Distance calculated by time. It is a velocity. जी. Means अगर ये कितने किलोमीटर में आई थी? 200 kilometer. 200 kilometer जी. in 10 hours, 15 minutes or 16 minutes. या दोस्तों कितने किलोमीटर, एक बार फिर से मैं भूल गया है। 200 किलोमीटर. 200 किलोमीटर ये बर्ड Divided छोड़ी गई by थी और ये लॉफ्ट पे आ गई 10 घंटे कुछ। no, 2 hours 15 minutes. 2 hours 15 मिनट के अंदर 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर। 600, that is different. That I'll show you that bird. ओके ओके, This is 200 kilometer 200 किलोमीटर। in 2 hours 15 minutes. ओके, मीन्स 100 किलोमीटर प्लस पर आवर स्पीड, Yeah. है ना? 100 किलोमीटर Distance divided by this one minutes. Yeah, because I am very new to this segment. This is the first time I am shooting this video of this homers. So these are the feathers of this bird. और दोस्तों फेदर्स आप देख सकते हैं। अब देखिए ये फेदर्स हैं बर्ड के, चाइनीज गर्ल नाम है इसका। और दोस्तों हर कबूतर का एक नाम मिलेगा। ईच एंड एवरी पिजन इज हैविंग नेम। Yeah, we used to have name and we have photo also. फोटो आल्सो Photos, yes. along with their pedigree. Yeah, pedigree. Who are mother and who is father, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। आइस देखिए, और क्योंकि शाम का टाइम है तो आइस कोशिश करेंगे। ये आइस क्यों नहीं आ रही सही, ये हमारे वो कैमरे से आती है आइस, तो जितने करीब लेके जाते हैं उतना। हाँ अब आइस देखिए दोस्तों, ये है चाइनीज गर्ल की आँख। और ये 200 किलोमीटर आई थी दौड़ के रेसिंग में। और ये देख सकते हैं ये परफॉर्म बर्ड्स हैं इनके। और हैव यू मीन is there any concept of this single tail or in Single, this homers? yeah, homers we used to prefer different category. If single tail is there, mean they will have a good balance. Okay, means how long this concept has been used in this homers? Yeah, it's a from starting itself they will have this. From starting itself? Yeah, if you see Sians, जी, the character of pigeons, Sian, he is from Sian Paul. okay, From his genes, we have some fanciers previously we are having in Chennai. okay, We used to have that is like a ball okay, and a single tail will be. सिंगल टेल विल बी। Single दोस्तों tail. ये बात बता रहे हैं That is very long distance bird. जी, जो सिंगल टेल का कॉन्सेप्ट है ये कई सालों से चले आ रहा है। Yeah, it is from the starting of the 100-200 years back। yeah. ठीक है, ये सिंगल टेल का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी यूज हो रहा है यहाँ पे होमर्स के अंदर। और आप मेरे को बताएं कि ग्रेबास के अंदर कब से यूज होना चालू हुआ सिंगल टेल का कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो आप मेरे को जरूर बताइएगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल टेल। और फेदर्स आपने देख लिए और बोन भी आपने देख लिए। जो बोन्स है, This flesh also should be a pink color. पिंक कलर शुड बी देयर। Flesh should be in pink color. या This is when it is in a form. Yeah. The bone will be like this. ओके, So when this, it is in flying form, Yeah, then flying. it will be bone should be visible. ओके ओके So it should be a balance of nutrition. ओके। तो दोस्तों ये आपने शो करा आपने चाइनीज गर्ल का, और भी परफॉर्मेंस जो कबूतर है बाहर के आए हुए वो भी आपको दिखाए जाएंगे।
कुछ कबूतर अभी भी बाहर हैं भाई के, तो आप देख सकते हैं। अंधेरा होने को हो रहा है, आप देख ही रहे होंगे। तो दोस्तों दाना डालने का टाइम भी हो चुका है और भाई मिक्स कर रहे हैं। देखिए आप, मैं तो हाथ से मिक्स करता हूँ, भाई कैसे मिक्स करेंगे वो आपको दिखाया जाएगा। देखिए आप कैसे कैसे सिंगल मेल्स अलग अलग उसमें पड़े हुए हैं। और आप और हम होते हैं तो अभी तक कब की ब्रीडिंग पे लगा चुके होते हैं, और ब्रीडिंग के बारे में जैसे बताया भाई ने, तो इसके ऊपर आजमाएंगे दाना और दिखाते हैं आपको। तो ये सारे सप्लीमेंट्स आप देख सकते हैं दोस्तों, सब रखे हुए। बीटा कोल रखा हुआ है, गार्लिक कोल रखा हुआ है, हेलमेटोन रखा हुआ है। इधर कई प्रोडक्ट अलग अलग कंपनी के रखे हुए। इवन ये देखिए आप, बीटा किंग के भी प्रोडक्ट हैं। कई प्रोडक्ट भाई यूज़ करते हैं अलग अलग, ये देख सकते हैं मिक्स करके। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों, आपके हमारी लॉफ्ट में क्या मिलते हैं, गोलियाँ मिलती हैं, देसी गोलियाँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सप्लीमेंट्स जमे हुए हैं, क्योंकि कबूतर जैसे होते हैं वैसे ही सप्लीमेंट्स भी हर जगह आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सारे मल्टीनेशनल ब्रांड्स अवेलेबल हैं भाई के पास, और नीचे के भाई कन्वर्ट हुए हैं भोपाल पिजन्स के ऊपर। और ये दाना देखिए आप, मिक्स दाना किस तरीके से अलग अलग चलाया जाएगा। Actually, this is for या purification mix. ओके, प्यूरिफिकेशन मीन्स When pigeon is coming, no, या आफ्टर So, आफ्टर returning home, Okay. we used to keep this is as a depurative mix. ओके, Depurative means it's purification. Yeah. What in body, whatever then their impurities are there in the Impurities. body, it will be it will go. This is with a high content of carbohydrates. Okay, So this is a conditioning mix. okay, This we use it for conditioning. After pigeon it is coming, no. This Yeah. is used we use for conditioning, yes. and this is for protein and normal feed. And what is This is groundnuts. groundnuts? Okay, This is groundnuts, and this is groundnuts means ये दोस्तों वो हैं मूंगफली के दाने। ये होते हैं आम आदमियों के बादाम। ठीक है, गरीबों का बादाम भी कहा जाता है। अगर आप बादाम यूज ना कर पाते हो तो गरीबों का बादाम यानी कि मूंगफली दाना आप यूज कर सकते हैं। And what about this? This is our recovery mix. Recovery. This is for from flight. Before flight or And after flight. also. When we are going to put training, we have to have this very little much only. Okay. You should not put more than 3 spoon per 20 birds or 10 birds. Means आप you have to keep this also while from up before Before flight, trying. just 2 or 3 scoop we are using. Yeah, just 2-3 teaspoon only. This is with the peeled sunflower. Yeah. All our imported seeds will be there. Yeah. Peeled sunflower Okay. and barley, and you have oats, hemp, mung, rapeseed, Yeah. all linseed, black rice, red rice, everything will be there in this one. Okay. So we can watch it how he is mixing. किस तरह से मिक्स करते हैं दाना। So per pigeon, I used to calculate this scoop is for 20 grams. Okay. Sorry, 200 grams. 200 This grams one. scoop is there. So I'm having totally 35 birds, 40 birds I'm having. Okay. So per pigeon, I'll have to put 35 grams or 30 grams. Okay. So 200 grams for 200, 200, Okay. 600. I used to put Yes. it for 60 birds. So then I used to add some depurative mix. Yeah. If I add some depurative mix, so I will mix it. So totally 800 grams 800. for 40 birds. 40 birds. 40 birds Yeah, I 40 use. birds. 40 birds in common. If I used to have some little extra, so I'll put it for my stock birds. Okay. So now actually today it is a Saturday. Saturday I used to have this one the final day, and I will consider as a final day. Okay. So today I used to have now actually there is multi oil is there. Yeah. So this one with Oil with the carbo max Carbomax plus along with along with this oil. So now I used to put it. for you are making this feed for 40 birds. है ना? This 40 is for 40 birds. है ना? 40 birds for Yeah. flying birds. Okay. Race birds. 40 racing birds. Race birds only. Breeding feed is different, and for racing Racing feed is totally different. So this is Yeah. for 40 birds. 40 birds रेसिंग बर्ड्स जो Racing रेस के अंदर तैयार हो रही हैं दोस्तों, उनके लिए ये आज आखिरी दिन है, क्योंकि उड़ाया था, उड़ के वापस आए थे। तो इनको साथ में जो दिया जा रहा है वो ऑयल दिया जा रहा है। ऑयल के साथ में कार्बोमैक्स प्लस देंगे भाई, ये दो चीजें मिला के देते हैं। और This आप is देखिए 1 teaspoon. क्वांटिटी कितनी सी, 1 टीस्पून मिला के दे रहे हैं कार्बोमैक्स प्लस के साथ में।
Actually, this oil is not in Bhopal pigeon. So Yeah, I'm yeah, not- no issue. We'll be launching very soon. 70 Inshallah. to 75 products will be there in our Bhopal Pigeons Okay, okay. supplement. That was Versi Laga's Forma oil. Yeah. Okay. We don't have any issue in promoting any of the good brands. Yes, 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 yes. Actually, yeah. this has 14 types of oil. Yes. So it has all groundnut, salmon Yeah. oil, wheat oil, Flaxseed everything, oil, flaxseed, all oils are everything. mixed in it. Yeah. It has in one combination. Yes. Smell it. वेरी नाइस स्मेल, मतलब लहसुन जैसी आ रही है हल्की. Yes, yes. गार्लिक के ऑयल इज आल्सो Garlic, everything. Yeah. So I used to put it for some Okay. 10 minutes like this way. so that So it can- feed will yeah, get it will absorbed. absorb it. So in that meantime, I used to prepare this granulation. तो दोस्तों ये जो है थोड़ी देर रखा जाएगा 10 मिनट तक, ताकि जो ऑयल डाला है वो ऑयल एब्जॉर्ब कर लें, जो सीड है इसके अंदर, दाने हैं इसके अंदर, वो तेल को एब्जॉर्ब कर लें. तब तक के लिए वो रखा है. और प्लस आप देख सकते हैं जो कार्बोमैक्स प्लस है वो कितना डाल रहे हैं भाई, वो भी आप चेक करें. I used to put for 1 gram teaspoon. For 1 gram teaspoon, I used to. मीन्स 4 ग्राम टोटल फॉर 4 40 gram. बर्ड्स. Yeah, for 40 or 5 grams I used to have. Yeah, 5 gram for 40 birds is the dose of Carbomax for 40 pigeons. ठीक है दोस्तों, तो ये देख सकते हैं आप कितने कैलकुलेटिव होते हैं हर चीज में. क्यों अच्छा, एक बात तो पूछना चाहता हूँ शफीक भाई कि व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ आवर होमर पिजन्स, मीन्स नॉट ऑफ योर लॉफ, आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल. Overall, you can. Banded. I am talking about only pedigree banded birds. India, you are asking, or across the world, you are asking. We can differentiate in India also. India. Or in India, Indian birds along with imported or exported birds pedigree line. So basically, if you have very strengthened loft means you have a consistent Yeah, performance. Yeah. So if we go and reach for any other fancier, basic is 10,000 per chicks Minimum. with pedigree. I'm sorry. Pedigree. With pedigree. तो With दोस्तों बताना चाहूंगा, जो भाई बता रहे हैं जिनकी पीडिग्री होती है, यानी कि जिनके बाप का पता होता है, माँ का पता होता है, परदादा का, परदादी का, और उनकी परफॉर्मेंस का पता होता है, मीन्स पीडिग्री होती है, तो वो चिक्स मिनिमम 10,000 से स्टार्ट होता है. 10,000 से लेके मैक्सिमम कितने तक पहुंच सकता है वो चिक्स? which one? 10,000 अप टू 10,000 up to Minimum is 60,000 it will come. 10,000 से I'm saying 60,000 for placement birds. yeah, and all the chicks they will be performing in other loft also. They will not keep them as breeder. Yeah. They will not keep them as breeder. Yes. They will make it fly. Fly. Yes. अब आप सोच सकते हैं दोस्तों 10,000 से लेके 60,000 तक का बर्ड फ्लाई करा जाता है मिनिमम. और एवरेज हाउ मेनी बर्ड्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फ्लाइट, मीन्स एज ए ट्रायल पर्पज, मीन्स from starting from 50 birds you will be training. No, now as of now I'm having only 35 to 40 birds. 40 birds. So today I have started 5 kilometer training. I finished. Okay. Today I put 12 kilometer training for females. Yeah. So tomorrow males 12 It will be kilometer. increasing day by day. Yeah, day by day. Yesterday I started on 14th. I started 5 kilometers. Okay. Today I reached 20 kilometers. Sorry, 12 kilometers. Okay. So let's feed the pigeons. और दोस्तों देख लीजिए आप, जब एक लॉफ्ट की बात कर रहा हूँ, एक लॉफ्ट जब So प्रिपरेशन there should be not a single. You like this way only we have to mix. यस, वेरी क्लियर. इट इज ऑफ योर फैक्ट्री ऑफ. Yeah, this is my own फैक्ट्री. My और own देखिए, brand. ये जो दाना है दोस्तों शफीक भाई की फैक्ट्री का है. आप चाहें तो बिल्कुल ये दाना आप मंगवा सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर मौजूद है. ठीक है, आपकी बर्ड्स के लिए. ठीक है, और दोस्तों अब चलिए अपन दाना डालते हैं. और आपको बता दूं दोस्तों, अब जब भी एक ट्रायल स्टार्ट होता है 40 कबूतर 35 कबूतर, तो आप समझ सकते हैं कि 30 से 40 लाख रुपए लगा रहता है एक लॉफ्ट का यहाँ पे. ठीक है, तो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ दोस्तों कि आप और हम बहुत अभी पीछे हैं. आप और हम कुछ शौकीन कहते हैं, लेकिन जो शौक दिखता है वो आप देख सकते हैं कि जब हर चीज उनको दी जाती है, दाना भी हिसाब किताब से दिया. Whenever you are putting feed, the tray should be very clean. It should be very clean. Yes. Of their
कोई बर्ड्स आ रही हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं बर्ड्स की टाइम हो चुका है इनके दाना पानी का, ठीक है। और भाई सिटी के हिसाब से बुलाते हैं, सबकी एक अलग वो रहता है कि किस तरीके से ट्रेन हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं। तो आपको एक एक चीज़ दिखाई जा रही है, आपको सिर्फ कबूतर बाजी दिखाई जा रही है। और के सब उड़ने वाले बर्ड्स जो कि ट्रायल पे लगे हुए हैं। First we have to put a small amount. Yeah. This one 200 grams I will put first. Yeah. Hey. They know now it is our feeding time. Yeah. So that side actually what happened, I forgot to close this trap. Yeah. This is female trap. Yeah, this one is female and that one is All male gone inside. अच्छा मेरा We are female. speaking, no? That time what happened, all male gone inside. Okay. So now I have to. This trap has been opened Yeah. and that is closed. That door, the door has been closed. Yeah. तो नाउ फीडिंग टाइम चल रहा है दोस्तों, आप फीडिंग टाइम देखेंगे, फीडिंग टाइम दिखाएंगे आपको। कबूतर फीड कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। मेरे बेटे हो ना यहाँ पे, है ना, सब अपने आप चले जाएंगे। अच्छा उस तरफ चले गए सारे के सारे मेल, तो फीड स्टार्ट कर चुके हैं और कबूतर उधर से ऊपर आएंगे, बाहर आएंगे। और ये डरते नहीं है दोस्तों, कबूतर डराते हैं ये कबूतर। तो दोस्तों दाना पानी हो रहा है कबूतरों का, और ये रेसिंग होमर से इसमें कार्बोमैक्स प्लस ऐड है और प्लस ऑयल ऐड है, ठीक है। तो आपने देखा कितना ख़तरनाक प्रोसीजर रहते हैं इन सब के, होमर कबूतरों के ख़ास तौर से, कि आज क्या देना है, कल क्या देना है, परसों क्या देना है, पूरा फिक्स रहता है टाइम टेबल, हर चीज़ का टाइम टेबल फिक्स रहता है। और आपने कई कबूतरों का शौक भी करा जो कि परफॉर्मर पिजन्स थे मन्नादी शफीक भाई के। तो कैसा लगा वीडियो आपको बताएं। और दोस्तों होमर कबूतर जो होते हैं वही सबसे आला कबूतर होते हैं हर चीज़ में। और Main thing is condition. हाउ दे आर केप्ट, Yeah, condition is the Yeah. best. वेदर कंडीशन, देयर कंडीशन, एवरीथिंग इज ए मस्ट। तो दोस्तों आप देखिए होमर पिजन्स के जो फेंसियर्स हैं दे आर एक्सेप्टेड भोपाल पिजन सप्लीमेंट्स। तो जो होमर्स कबूतर होते हैं, जो जैसा कि मैंने बताया सबसे आला कबूतर होते हैं, सबसे अलग कबूतर होते हैं, और जिनकी एक एक चीज़ महफूज रखी जाती है, एक एक चीज़ संभल के रखी जाती है। अगर बोतल के ढक्कन के ऊपर हल्का सा फंगस भी आता है तो लोग बाग देते नहीं हैं, वो बोतल को फेंक देते हैं, क्योंकि उनके लिए कबूतर एक जुनून है, कबूतरबाजी एक जुनून है होमर्स वालों के लिए। और होमर्स फेंसियर्स का वाकई मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने भोपाल पिजन सप्लीमेंट्स को एक्सेप्ट कराए। थैंक यू ऑल होमर पिजन सप्लीमेंट्स, होमर पिजन्स फेंसियर्स जिन्होंने एक्सेप्ट करा भोपाल पिजन्स को। और दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको बताइएगा। ये है होमर पिजन्स, और शफीक भाई के जो परफॉर्मर पिजन्स थे वो देख के आपको कैसा लगा वो भी आप बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।